السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کل میں شوگر کے عنوان پر اپنا ایکسپیرینس آپ احباب سے شیئر کر کے انسانیت کی بھلائی کی خاطر آگاہی دے رہا ہوں۔ حالانکہ تمام امراض پر الحمدللہ اللہ کے کرم و فضل سے دسترس ہے اور تمام امراض و علامات کا میں علاج کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ خالی شوگر کا ہی علاج کرتا ہوں، لیکن جتنا میں نے لوگوں کو شوگر کے بارے پریشان اور اس قدر خوف زدہ پایا ہے کہ شوگر کا نام سنتے ہی لوگ اس طرح ڈر جاتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہو گیا۔ حالانکہ کچھ امراض و علامات ایسی ہیں کہ شوگر کے علاوہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو انسان چند لمحے بھی نہیں گزارتا اور بڑی مشکل سے اس پر کنٹرول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہیضہ، نمونیا، سرسام، ہارٹ اٹیک یا فالج قرار دے لیں کہ کس قدر انسان کو محتاج اور زندگی کو بے نور کر دیتا ہے۔ جبکہ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ حقیقی، اصلی اور اعصابی شوگر جو ہے وہ انسان کی زندگی کو جیتے جی مردہ بنا دینے والی ایک علامت ہے، جس پر آج تک سائنس بالکل ناکام جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز احباب بالکل ناکام ہیں۔ میں اگر اسے 0% کہہ لوں تو کہا جا سکتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ پوری دنیا سے رابطہ کر کے یہ بات باور کر رہے ہیں کہ یقیناً شوگر کے بارے سائنس ناکام اور فیل ہو چکی ہے اور ان کی تمام ادویات بما انسولین کے کہیں 100 میں سے کوئی 2 آدمی ایسے ہوں گے جن پر کچھ عرصہ بہتر اثر ہوا، لیکن 99% ایسے لوگ مل رہے ہیں کہ سالوں سے دوائیاں کھانے کے باوجود بہت سارا نقصان ہو رہا ہے اور آفاقہ نہیں۔ تو یہ میں نے آپ سے چند باتیں اس لیے عرض کر دیں کہ آپ کو آج کے ٹاپک کا عنوان بتانے سے پہلے آپ کا دھیان میں لے لوں، کیونکہ کچھ دوست میرے ایسے بھی ہیں جن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ حکیم صاحب بس 1-2 منٹ کی ویڈیو بنا دیں، اسی سے ہی کام ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم، میری گزارش ان دوستوں سے مودبانہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ یوٹیوب پر بیٹھے ایسے ہی وقت ضائع کر رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ دوسرے کمنٹس بھی دیکھا کریں کہ کتنے لوگ دعائیں دے رہے ہیں اور کتنے لوگوں کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، اور سینکڑوں مریض ایسے ہیں جو خالی ڈائٹ پلان کے ساتھ اپنی مرض کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں معذرت خواہ ہوں ان دوستوں سے جن کو لمبی ویڈیو اچھی نہیں لگتی۔ میں یہاں آپ کو علم کی ایک ایسی کڑی دینے آیا ہوں جس میں میرا مقصد چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کر کمنٹس لینا، ویوز لینا ایسا نہیں ہے کہ میں پیسے کمانے کے لیے بیٹھا ہوں۔
पैसा तो अल्लाह की ज़ात ने जितना किस इंसान के मुकद्दर में लिखा है उससे ज़्यादा वो 1 रुपया नहीं कमा सकता, ये मेरा यकीन है। वरना आप देख लें, दीगर वीडियोस बहुत सारी पड़ी हैं, कुछ टाइटल ऐसे लिखे हैं कि इंसान का पढ़ने से भी दिल ख़राब हो जाता है, दिल आज़ारी होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो 1-2 मिनट की वीडियो पे खुदा की कस्में उठाकर भी आपके व्यूज़ ले जाते हैं, उनके नोट पूरे हो जाते हैं, आप ठीक हों या ना हों। अज़ीज़ान मोहतरम, हकीम ज़िया आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहता। हाँ, मैं आखिरी बात ये कहूँगा कि अगर किसी दोस्त का वक्त ज़ाया होता है मेरी वीडियो देखकर, तो खुदा के लिए वो अपना वक्त अपने पास रखे। मैं उन दोस्तों के लिए ये वक्त निकालता हूँ जो दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज की इस वीडियो में टॉपिक है, वो है शुगर के साथ दीगर बहुत सी अलामात और उनकी वजूहात। क्योंकि आजकल आप और मैं ये देख रहे हैं कि जिस बंदे को शुगर हो गई, उस बंदे के चंद हफ्तों के अंदर चेहरे की रंगत, जिस्म की तमाम कुव्वतें, आँख, दांत, बाल, जिस्म की कुव्वत और बहुत सारे दीगर अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। आखिर मर्ज़ एक है, अलामात सैकड़ों से भी गुज़र गईं। ये क्यों होता है कि शुगर तो हो ही गई, इसके साथ ऐसा क्यों होता है? सबसे पहली बात आप देख लीजिए कि जब शुगर होती है तो चंद हफ्तों में ही इंसान को सबसे ज़्यादा पेशाब आने लगता है। ये मैं असली, हकीकी और आसाबी शुगर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शुगर की 3 इक़साम हैं जिससे आज की फ़रंगी मॉडर्न मेडिकल साइंस बिल्कुल ला इल्म है, उन्हें कुछ इल्म नहीं है। आखिर इंसान इतना पानी भी नहीं पीता जितना कि पेशाब आता है। तो सामईन मोहतरम, इसकी वजह ये होती है कि इंसान जो कुछ भी खाता है, आप जान चुके हैं शुगर कोई बीमारी नहीं की वीडियो में, कि उससे कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लाइकोजन बनता है, ग्लूकोज बनता है, और इन चीज़ों के बनने के बाद इंसान के अंदर इंसुलिन लबलबा इंक्रीज़ करता है। तो फिर इस कॉम्बिनेशन से वो कुव्वत में बदल जाती है आपकी कार्बोहाइड्रेट, आपका ग्लाइकोजन, आपका ग्लूकोज। चूँकि ग्लूकोज के बग़ैर, मीठे के बग़ैर ज़िंदगी है ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन पेशाब की ज़्यादती की वजह क्या बनती है कि बग़ैर शुगर के पेशाब ज़्यादा आता ही नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, शुगर के साथ जब पेशाब की ज़्यादती होती है तो उसकी वजह ये होती है कि इंसान का ग्लूकोज हज़म नहीं होता, जुज़्वे बदन नहीं बनता। आपके सेल्स में चूँकि ग्लूकोज को इंजेक्ट करना होता है इंसुलिन ने, जो कि तेज़ तरीन एसिडिक है, वो चूँकि बन नहीं रही होती या बहुत कम मिकदार में बनती है, और हम ग्लूकोज को हद से ज़्यादा ले लेते हैं। अब क्या होता है कि जो कच्चा ग्लूकोज आपके ब्लड में बढ़ जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एक मशीन की तरह काम करता है। वो आपके इस ग्लूकोज को फालतू फुजला समझकर गुर्दों की तरफ कन्वर्ट कर देता है, और गुर्दे उसे पेशाब बनाकर ज़ाया कर देते हैं। यही वजह है कि शुगर वाले के पेशाब में चींटियाँ, चींटे और कीड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं, और वो एक गूंद की तरह अगर कपड़े पे भी पेशाब लग जाए तो अकड़ जाता है, जैसा कि चीनी, शक्कर, गुड़ वगैरह कपड़े पर लग जाए तो अकड़ाव और तनाव आ जाता है। अब ये तो रही आपकी वो वजह कि कसरत पेशाब क्यों होती है। अब कसरत पेशाब के साथ साथ शुगर वाले का जिस्म हड्डियां बन जाता है। चंद महीनों में मैं मरीज़ों को देख रहा हूँ, मेरे दोस्त तस्वीरें भिजवा रहे हैं, हकीम साहब ये शुगर से 2 माह पहले की तस्वीर है और ये शुगर से 4 माह बाद की तस्वीर है। अब यकीन जाने दिल दुखता है कि किस कदर नौजवानों को खा गई, इस तरह जैसे एक सैलाब बस्तियों को उजाड़ के उखाड़ के रख देता है। ये एक सैलाब की तरह तबाही और बर्बादी का सबब बन जाती है। चूँकि जिस ग़िज़ा ने जिस्म में हज़म होना है, वो हज़म हुए बग़ैर कच्ची जिस्म में जब ठहरती है तो गुर्दे
اپنا کام ادا کرتے ہوئے، اپنا فعل، اپنی کارکردگی کو دکھاتے ہوئے ان غذاؤں کو بھی خارج کر دیتے ہیں جو جسم کے لیے انتہائی ضروری تھیں۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک طرف تو آپ کا گلوکوز ضائع ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ کا گلوکوز جزوِ بدن نہیں بن رہا، اور جو فیٹ آپ کے اندر تھی، موٹاپا تھا، قوت تھی، وہ آپ کی جسم نے خرچ کرنا شروع کر دی، کیونکہ نئی بن نہیں رہی، نئی گلائکوجن، گلوکوز، فیٹ، چربی، طاقت پیدا نہیں ہو رہی، آپ کی غذائیں ضائع ہو رہی ہیں۔ تو ان غذاؤں کے ضائع ہونے سے ایک طرف تو آپ کا جسم اپنی طاقت کو کھونا شروع کر دیتا ہے، دوسری طرف آپ کے جسم میں جو فیٹ یا موٹاپا یا قوت ہوتی ہے، اس کی جو طبیعت ہے وہ اسے صرف کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب تک آپ کے جسم میں فیٹ، گلوکوز، گلائکوجن رہتی ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی تو پیشاب ہی زیادہ آ رہا ہے، خیر ہے، ابھی میں ہٹا کٹا لگ رہا ہوں۔ لیکن چند ہفتے، چند ماہ جب ایسا ہوتا ہے عزیزان محترم، خواتین و حضرات، میرے پیارے بہن بھائیوں، تو پھر وہ جسم کی ہڈیاں نکل آتی ہیں۔ کیوں کہ جسم کی خوراک تو جسم نے لینی ہی لینی ہے، چاہے وہ تازی کھائی ہوئی غذا سے گلوکوز بن جائے اور وہ انجیکٹ ہو جائے آپ کے سیلز میں تو وہ لے گا، انجیکٹ نہ ہو پائے تو وہ پیشاب سے گئی، اور جو بنی ہوئی طاقت تھی وہ جسم نے خرچ کر دی، یعنی آپ کا جو سٹور تھا گلائکوجن وہ بھی آپ کا صرف ہو گیا۔ اب نئی گلوکوز بن نہیں رہا، گلائکوجن نہیں بن رہی، فیٹ نہیں بن رہی، گلوکوز نہیں مل پا رہا آپ کے سیلز کو، سابقہ گلوکوز فیٹ کی شکل میں جو تبدیل ہو کر دوبارہ انرجی بن گیا وہ صرف ہو گیا۔ نتیجے کے طور پر آپ کے جسم کو ہڈیاں بنا دے گی یہ مرض۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بہن بھائیوں، اب آپ سمجھیے گا، یہ ہو گیا کثرت پیشاب اور جسم کا کمزور ہونا۔ اب اگلا پہلو، اس کے ساتھ اکثر میرے مرد بھائی جو ہیں، حضرات جو ہیں، ان کی یہ شکایت آ رہی ہے کہ ازدواجی تعلقات یعنی مردانہ طاقت بالکل زیرو ہو جاتی ہے، جی اس کے لیے کچھ کیجیے۔ ضمن میں ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، میں آپ سے عرض کرتا چلوں۔ پچھلے دنوں ایک دوست کا فون آیا چکوال سے، وہ کہنے لگا حکیم صاحب مجھے 8 سال سے شوگر ہے اور میں CHM راولپنڈی سے ایک لیفٹیننٹ کرنل ہیں جی، ڈاکٹر ہمارے کیپٹن ہیں، ہم ان سے علاج کروا رہے ہیں 8 سال سے، اور مجھے انتہائی شدت کی مردانہ کمزوری ہو گئی ہے، آپ سے اس کے بارے میں مشورہ کرنا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ میرے بھائی آپ 8 سال سے شوگر ہے، علاج آپ CHM راولپنڈی سے کروا رہے ہیں، تو وہاں سے آپ کو مردانہ طاقت کے لیے کیا ہیلپ دی گئی؟ تو اس انسان کی میں بات سن کر آپ یقین جانیں، اگر وہ ویڈیو دیکھے گا تو وہ ضرور کمنٹس کرے گا کہ اس نے کہا کہ جی مجھے ڈاکٹر صاحب CHM والے فوج کے اعلیٰ ترین جو ڈاکٹر ہیں وہ اس معاملے میں ویگرا مجھے دیتے ہیں، اور اب میں ویگرا کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں، اب ویگرا بھی مجھے اثر نہیں کرتی۔ تو عزیزان محترم، یہ وہی بات آ گئی نا جو مردانہ کمزوری کی وجوہات میں نے عرض کر دی تھی کہ میرے بھائیوں، عارضی دوائیاں کھا کر اپنے گلینڈ اور گردوں کو آپ تباہ نہ کریں۔ اس مردانہ کمزوری کی جو شوگر کی وجہ سے ہوتی ہے، آئیں میں آپ کو اس کا آج تعارف کروا دوں۔ میرے بھائیوں، جب آپ کی غذا ہضم ہی نہیں ہو رہی، چونکہ انسان کے 4 ہضوم ہیں میرے بھائی، سمجھ لیجئے بات کو، سمجھ لیجئے، آپ کے لیے وقت نکالتا ہوں۔ پہلے ہضم سے آپ کا فضلہ بنتا ہے جسے آپ پاخانہ کہتے ہیں، دوسرے ہضم سے پیشاب بنتا ہے، تیسرے ہضم سے انسان کا پسینہ بنتا ہے، اور چوتھے ہضم سے انسان کے عضو جو ہیں وہ غذا لیتے ہیں، اور اس عضو کی ہضوم کے بعد جو فضلہ بنتا ہے وہ انسان کا مادہ منویہ ہے۔ تو عزیزان محترم، جب کہ شوگر حقیقی کے مریض کا چوتھا ہضم ہی خراب ہو جاتا ہے، جسے آج تک سائنس نہ ثابت کر سکی، نہ تلاش کر سکی،
ना ही फरंगी तिब इसको बयान कर सकी कि ऐसा क्यों होता है। भाई शुगर तो एक मर्द है, मर्दाना कमज़ोरी क्यों आ गई? शुगर तो एक मर्द है, हड्डियां क्यों निकल आईं? शुगर तो एक मर्द है, दांत क्यों हिलने लग गए? शुगर तो एक मर्द है, आँख पे क्यों कमज़ोरी आ गई? शुगर तो एक मर्द है, बाल गिर के बंदा गंजा क्यों हो गया? शुगर तो एक मर्द है, इंसान की कमर क्यों झुक जाती है? शुगर तो एक मर्द है, इंसान बीवी के काबिल क्यों नहीं रहता? ये आपको आज की फरंगी तिब और फरंगी तिब के चहते नहीं बता सकते, क्योंकि महज उन्होंने आपको गोलियां और इंसुलिन पे रखकर आपकी ज़िंदगी को आगे ले जाना होता है। जहाँ तक उनकी ताकत है वो इनकी डोज बढ़ा सकते हैं, आपको वजूहात नहीं बताएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इसलिए आप जब ऐसी बदपरहेज़ी करते हैं कि जिससे कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा बढ़ जाए, और ज़्यादा मीठा खा लें, और ज़्यादा ऐसी असाबी चीज़ें खा लें कि जिससे आपके जिस्म में शोर, माई मादा, पानी और नमकियात बढ़ जाएंगे, तो चूँकि आपके जिस्म को पहले तहलील मिल रही है, जिस्म घुल रहा है, पिघल रहा है, निचड़ रहा है, तो इससे और आपके जिस्म से ताकतें खारिज होना शुरू हो जाएंगी। इसी वजह से मैं अर्ज़ करता हूँ कि आप प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ खाएँ, फ़कत प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ, क्योंकि इंसान की ग़िज़ाएँ 4 किस्म के समरात पर मुनहसर हैं। 4 किस्म की इंसान की ग़िज़ाएँ हैं। एक तो प्रोटीन है, दूसरा आपकी फैट्स है, तीसरा साल्ट्स है, और चौथे मेरे भाइयों आपकी कार्बोहाइड्रेट्स है। एक तरफ रोगनियात आ गए, एक तरफ आपके मैदे और सारी वो ग़िज़ाएँ आ गई कार्बोहाइड्रेट वाली, दूसरी तरफ प्रोटीन आ गई। और मेरे भाइयों इन 4 चीज़ों के अंदर आपके इस शुगर वाली मर्ज़ में आपका कार्बोहाइड्रेट बढ़ता है, और कार्बोहाइड्रेट का हल जो है वो प्रोटीन है। इसलिए आप अंधाधुंध गोश्त खा लें, ब्रायलर को छोड़कर। वाज़े कर रहा हूँ, ब्रायलर कोई गोश्त नहीं है, गोश्त की पिक्चर है, गोश्त की फ़ोटो कापी है। मैं वजाहत से कह रहा हूँ, आप यूँ समझ लें कि ये आपको आर्टिफिशियल गोश्त दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता ना खाएं, प्रोटीन है इसमें, लेकिन इसके प्रोटीन के अंदर केमिकल कितने हैं, इसके अंदर कमज़ोरियाँ कितनी आ जाती हैं, दीगर अमराज कितने पैदा हो सकते हैं, ये आपको डॉक्टर भी बता रहे हैं, और आपको मुर्गी खुद बता रही है कि मैं कितनी बड़ी पहलवान हूँ। ईंट सामने रख दो तो ईंट को छलांग लगा के नहीं गुजर सकती। तुम 10 किलो मुर्गा हफ्ते में खा जाओगे तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं होगा। इससे बेहतर है मेरे भाइयों आप दालें ले लें, माश की दाल छोड़कर आप मसर की दाल लें, चने की दाल लें, बेसन लें, बेसन का मकसद है पकौड़ा बना लें, आप इसमें दही भल्ले बना लें, आप यानी वो चीज़ें जो आपकी प्रोटीन को बढ़ा दें। को ज़रूरी गोश्त में प्रोटीन रखी, अल्लाह ने बहुत सारी दालों में प्रोटीन रखी है, तो वो दालें बढ़ाएं। ऐसी सब्जियां लें कि जिनके अंदर प्रोटीन हो, फुलाद हो, फुलादी जितने भी जुज़ हैं आप उन्हें इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट हज़म होती रहेगी और आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये उन दोस्तों के लिए है कि उन्हें आज मैं खुलकर ये बता दूं कि ये मर्दाना कमज़ोरी का जो आप रोना रोते हो मेरे भाइयों, ये मर्दाना कमज़ोरी आपकी ग़िज़ा हज़म नहीं होती। चौथा हज़म ख़राब होता है, मादा मनविया बनता ही नहीं, अगर बनता भी है तो पतला पानी की तरह, और इंसान की टाइमिंग यानी इमसाक भी ख़राब हो जाता है। अज़दवाजी ज़िंदगी तो यूँ समझ लो कि तबाह होकर रह जाती है। फिर आगे क्या होता है? हमारे ये माशाल्लाह फरंगी भाई, इनको वैगरा, योगरा, कोबरा, पता नहीं क्या बलाएँ निकाल रखी हैं जो चंद हफ्ते तो ज़रूर लज्जत देती हैं, क्योंकि ये दवाइयाँ काम नहीं करती। मैं जिक्र कर चुका हूँ, मेरा पूरा आप चैनल देखें आपको पता चलेगा, मैंने आपसे एक एक बात शेयर कर दी हुई है। इनकी गोलियां आपके गुर्दों को निचोड़ देती हैं, क्योंकि सेक्स की पावर के लिए गुर्दों में ऐसे 2 ग्लैंड अल्लाह ने लगाए हैं जो एक एक ड्रॉप रोज़ाना की सूरत में 24 घंटों में वो आपके खून में इंजेक्ट करते हैं, जिससे सेक्स की पावर तरोताज़ा रहती है। इनकी गोलियां, दवाइयां ये जितनी वैगरा दे रहे हैं ये निचोड़ कर, जिस तरह आपने सुना है कि ये शुगर की गोलियां लबलबे को निचोड़ देती हैं, इस तरह ये सेक्स की दवाइयां गुर्दों को निचोड़ देती हैं। ये लोग बतलाते नहीं हैं कि हमने कितनी वैगरा खाई है, कितनी कोबरा। जब गुर्दे फेल होते हैं ना, बस इतना कहते हैं शुगर है जी।
आप यकीन जानें 50 साल शुगर रहे आपको कभी गुर्दे फेल नहीं होंगे। ऐसे गुर्दे कैसे फेल हो गए? पेशाब की कसरत गुर्दों को ठंडा ज़रूर रखती है, चर्बियाँ ज़रूर खुल जाती हैं, लेकिन जब साथ आप केमिकल का यूज़ करते हैं तो फिर आपकी वो नेफ्रॉन को, गुर्दों की जालियों को, झिल्लियों को वो तबाह बर्बाद कर देती है। तो इस चीज़ों से आपने गुरेज करना है। तो अब मेरे भाइयों को समझ आ गई कि मर्दाना कमज़ोरी कैसे होती है, सूरत अंजाल कैसे होती है। इसका हल दवाइयाँ नहीं है, इसका हल आप अपनी शुगर पे कंट्रोल करें। एलोपैथिक को छोड़कर हर्बल के तरीके से अपनी प्रोटीन की ग़िज़ाओं को नेट से तलाश कर लो, जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ में प्रोटीन है खाते फिरो, इंशाल्लाह कामयाब रहोगे। अज़ीज़ान मोहतरम, आँखों में कमज़ोरी शुगर की वजह से नहीं आती, क्योंकि दांतों में कमज़ोरी ये शुगर की वजह से नहीं, क्योंकि आपके ब्लड में वो चीज़ मैसर ही नहीं हो रही, स्टोर ही नहीं हो रही, कुव्वत ही नहीं बन रही, तो जिससे सर से पाँव तक जिस्म हड्डियाँ बन जाएगा, उसमें बाल भी हैं, आंखें भी हैं, दांत भी हैं, कान भी हैं, जिस्म की कुव्वतें भी हैं, सारी ही मुतासर हो जाएंगी। इसलिए मैं उन दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी दौलत को वैगरा, कोबरा और ऐसी अद्वियात पर न सर्फ करें। आप यकीन जानें, जो 4 दिन आपके अच्छे गुजरने वाले हैं वो भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे, बाद में आप पछताते फिरेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह आप ये मिसाल ज़रूर समझ लीजिए कि आपके, जैसे मैंने एक अपनी वीडियो बनाई है ना कि खून एक और बीमारियां 1000। भाई शुगर एक है और इसकी अलामात मुख्तलिफ क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि कार्बोहाइड्रेट जिस्म के लिए जो ग्लूकोज बनना था वो ग्लूकोज बन ही नहीं रहा, जो बना हुआ था वो बिल्कुल ज़ाया हो गया, सर्फ हो गया, ख़त्म हो गया। उधर ग्लूकोज इंजेक्ट नहीं हो रहा, साबका ख़त्म हो जाता है, तो उधर फिर आपने इंसुलिन और गोलियां शुरू कर रखी होती हैं। उधर तो पहले जिस्म हड्डियां बन जाता है, इधर फिर क्या होता है, ये दवा तेज़ तरीन एसिड होने की वजह से आपकी शरीयानों और वरीदों और गुर्दों को तंग करके तबाह बर्बाद कर देगी। मेरे पास एक पेशेंट आए हैं लाहौर से, इंशाल्लाह मैं अनकरीब चाहूँगा, तारक साहब उनका नाम है, उनके पाँव में मेरे पास वीडियोस उनकी पड़ी हैं, तस्वीरें मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। इतना बड़ा गैप काट के अंदर से पाँव रेशे से भरा हुआ था, निकाल दिया डॉक्टर ने, अंदर टाकियाँ और रुई भर दिया। आज उसे तकरीबन 2 माह हो गए मेरे पास आ रहे हैं। अल्लाह ने उन्हें शफा बख्शी है, मैंने नहीं किया। उनका पाँव बिल्कुल भर चुका है, हल्का सा ज़ख्म बाकी है। इंशाल्लाह अनकरीब मैं चाहूँगा कि रमज़ान के बाद उनको बुलाकर और उनकी ज़ुबानी आपको सुनवाऊँ कि उनका हाल क्या हुआ था, और उन्होंने इंसुलिन कितने साल लगाई और कितने हज़ार मिली की वो गोलियां खाते रहे। आखिर पाँव कटने पे आ गया तो अल्लाह ने एक रास्ता दिया। मैं नहीं कहता कि मेरे पास शिफा है मेरे भाइयों, अल्लाह की ज़ात के हाथ शिफा है, मैं कोशिश करता हूँ। तो अब मेरे उन भाइयों से, उन बहनों से मेरी गुजारिश है कि जिनको जिस्म की कमज़ोरियाँ, कईयों के बाल गिर गए, कईयों के दांत गिर गए, कईयों की आंखें ख़राब हो गईं, कईयों के हड्डियाँ निकल आईं, तो मेरे बहन और भाइयों, आप सबसे पहले अपनी शुगर को कंट्रोल करें, जहरों से ना करें। हर्बल अद्वियात, प्रोटीन वाली ग़िज़ायात, उसे आप लेते रहें तो इंशाअल्लाह आपकी सेहत पहले से बेहतर होती रहेगी। क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रोटीन में इंसुलिन होती है, हाजमा हो जाएगा। दूसरी तरफ आप मीठे छोड़े रखें, मीठे फल जो हैं, जो तेज़ तरीन आजकल तरबूज आ रहा है, खरबूजा है, ये ना खाइएगा बिल्कुल। तरबूज, खरबूजा ये हद से ज़्यादा शुगर को पैदा करते हैं। एसिडिक खट्टा फल लें, जैसे जामुन है, फालसा है, लुकाट है, स्ट्रॉबेरी है। फालसा आजकल आ रहा है, स्ट्रॉबेरी भी है और लुकाट भी आ चुकी है। यकीन जानिए, ये जितनी मर्जी खा लें, शेरों खा लें, आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। अगर आपने गलती से भी तरबूज खा लिया और गलती से भी आपने चावल खा लिए, गलती से भी आपने कद्दू, खीरा, टिंडा, पेठा, गाजर, मूली, ये सारे फल शुगर पैदा करने वाले, ये सारी सब्जियां शुगर पैदा करती हैं, गर्मा भी सर्दा भी। ऐसा नहीं है डॉक्टर ने बताया जी मैं तो सलाद खा के शुगर कंट्रोल कर रहा हूँ जी। क्या खाते हो जी? मैं खीरा खाता हूँ। और मेरे भाई, खीरा तो हम उनको देते हैं जिनको पेशाब ना आता हो। खीरा या खीरे का जूस आप पीते जाएंगे तो शुगर ना भी होगी तब भी हो जाएगी। यही जहालत है साइंस की और फरंगी तिब की, जो मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। आप खीरे की जगह पे चुकंदर का जूस पी लें,
आप उसकी जगह पर यकीन जानिए करेले का जूस पी लें, टमाटर का जूस पी लें, मसर की, मूंग की, चने की दाल को खूब गलाकर उसका आप हरीरा सा बनाकर नमक मिर्च तेज़ मसाले डालकर उसे पी जाएं। आप यकीन जाने आपका शुगर भी कंट्रोल होगी, आपकी दिल की कुव्वत भी बढ़ेगी, आपकी मर्दाना कुव्वत भी बढ़ती चली जाएगी। काले चनों की यखनी बनाकर सुबह दोपहर शाम पिएं आप, तेज़ मिर्च मसाले डालकर। एसिड की तो कमी है, लौंग ज़्यादा डालिए, दालचीनी ज़्यादा डालिए, आप इसमें जायफल जलवतरी डाल लीजिए, पैसा है तो ज़ाफ़रान मिक्स कर लीजिए। ऐसे मसाले डालें जो चरपरे और कड़वे और तेज़ हों। जो मीठे और फीके मसाले हैं जैसे धनिया है, ज़ीरा है, आप अगर धनिया और ज़ीरा और हल्दी ज़्यादा डालेंगे तो भाई आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। और कुछ लोग बेचारे दवाइयाँ भी मंगवा ली हैं और जी आटा नहीं छूटा जा रहा। भाई आटा नहीं छूटा जा रहा तो फिर आप तैयारी करो, क्योंकि फिर तो हाथ पांव काटने वाले तैयार बैठे हैं। आटा है, चावल है, मैदा है, बेकरीज की आइटम है, मेरे भाइयों ये सारी छोड़नी पड़ेंगी। इनको आप कुर्बानी दे दें और अल्लाह आपको शिफा दे देगा। अजीज़ान मोहतरम, यही वो गुजारिशात थी शुगर और उसके साथ दीगर अलामात के उन्वान पर मैंने आपके सामने रख दिया है कि आपको जब शुगर हकीकी हो जाएगी तो ये अलामात आएंगी। किसी को एक आएगी, किसी को दो, किसी को सारी आएंगी। मैं फिर बड़ी माजरत के साथ आखिरी बात करता चला जाऊं, जो ईमान वाले हैं ना, जिनको पता है कि वाकई ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, आप यकीन जाने मेरे रिकॉर्ड में आके देखें, अच्छे अच्छे डॉक्टर मेरे पास मख्फी तौर पे बेचारे पूछ रहे हैं कि जी आप क्या देते हैं, आप क्या करते हैं। तो मैं क्या कहूँ, मैं ये कहता हूँ कि उनकी बड़ी मेहरबानी कि वो बेचारे कम अज़ कम रब्ता तो कर रहे हैं, मान तो रहे हैं कि हाँ हमारे पास इसका हल नहीं है। अज़ीज़ा ने मोहतरम, मेरा कोई किसी से लड़ाई झगड़ा फसाद तो नहीं है, या मैं कुछ जंग छेड़ के बैठा हूँ कि जी मेरा इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है मैं लड़ूँ। और ये सारी जंग इल्मी कर रहा हूँ और आपको आगाह कर रहा हूँ, आपकी बचत कर रहा हूँ, बचा रहा हूँ कि आप बचें, कुछ भी नहीं है। हाँ, जिसने नहीं कंट्रोल होना वो मेरे से भी नहीं होगी, वो उनसे भी नहीं हो रही, लेकिन मैं गलत रास्ता नहीं बताऊँगा, गलत चीज़ नहीं आपको बताऊँगा। बहुत सारे मरीज़ हैं जो गलत रास्ते पे चल चल कर, और एक इंशाल्लाह आपको फिर खुशखबरी दे दूँ मैं कि मैंने तरबूज खिलाकर, खीरा खिलाकर, खरबूजे खिलाकर, गंडेरियाँ खिलाकर शुगर नील कर दी है। कच्ची कोठी के भाई इमरान साहब हैं, वापडा में हैं, इंशाल्लाह मैंने उनसे वादा लिया है, वो मुझे वीडियो देंगे। उनकी शुगर गई क्यों, फिर ये बता दूँ। उनकी शुगर गुदी थी, उनकी झूठी शुगर थी, वो कब्दी शुगर थी। वो बेचारा कह रहा था मुझे इंसुलिन की भी राय दी गई, मुझे ये भी हुआ, मुझे वो भी, ब्लड प्रेशर भी हाई था, गुस्सा भी था। अब वो आपको आके बताएगा वीडियो में कि वाकई मुझे शुगर थी और मैं कैसी दवाइयाँ खाता था और क्या खाकर ठीक हुआ हूँ। यही मैं वो आपसे सच है मेरे भाइयों जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। शुगर की बहुत सारी इकसाम है, बहुत सारे स्टेज हैं और बहुत सारी इसकी अलामात होती हैं। इसलिए हर बंदा बेचारा, नए आदमी जो आते हैं ना मेरे चैनल पे, फौरी कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे, जी मुझे शुगर है, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं फिर आखिरी गुजारिश करूंगा, मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई हुई है, मैं मरीज़ कैसे चेक करता हूं, उसको सुनें, मेरे चैनल पे जाकर उसे सर्च करें, आपको मिलेगी। उसको सुनकर उसके मुताबिक, आप दूर मुल्कों में हैं तो उसके मुताबिक आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। अगर आप मेरे मुल्क में हैं, पाकिस्तान में, तो आप उस पर भी रब्ता करें। मेरे पास नहीं आ सकते तो आप व्हाट्सएप पे चेकअप करवाएं। बग़ैर आपकी तहकीक के मेरे पास मेरे भाइयों ऐसी इंसुलिन नहीं है जो आप मेरे पास आ जाएंगे, मैं लिख दूंगा इंसुलिन लगाओ, ये 1 mg से 2 करो, 2 से 5, 5 से 100,000। मेरे पास mg नहीं है मेरे भाई, मेरे पास तहकीक है, तशखीस है। मैं देखता हूँ ये गैंग्रीन क्यों होती है, ये फोड़े फिंसियाँ क्यों निकलते हैं, ये कार्बंकल क्यों होता है, ये शुगर वाले को खारिज क्यों होती है, इसका ब्लड हद से ज़्यादा लो क्यों है, इसकी शुगर 500 क्यों है, इसकी भी शुगर 500 है, उसका ब्लड प्रेशर हद से ज़्यादा हाई है, इसकी शुगर 500 है, उसका ब्लड प्रेशर हद से ज़्यादा लो है। ये कौन बताएगा आपको? शुगर दोनों की बराबर है, एक का बीपी आसमान को छू रहा है, एक का बीपी बिल्कुल गिर रहा है। क्यों? वो भी इंसुलिन ले रहा है, वो भी इंसुलिन ले रहा है, ये तमाशा रोज़ देखता हूँ। और आखिरी सवाल मैं अपने गैर मुल्की दोस्तों से करूँगा। पाकिस्तान में तो मुझे पता है CHM के अलावा और बड़ी कोई चीज़ है नहीं। मैं आपसे ये आखिरी गुजारिश करके इजाज़त चाहूँगा कि कभी आप अपने डॉक्टर से
اتنا ضرور سوال کر لیں، میرا نام لے کر کہہ دیں کہ ڈاکٹر صاحب میں 6 سال سے دوائی کھا رہا ہوں، میری دوائی بڑھتی جا رہی ہے، مرض کم کیوں نہیں ہوئی؟ اگر آپ یہ دوا دیتے ہیں تو دوا تو وہ ہوتی ہے نا جو مرض کو دور کر دے، تو وہ کیسی دوا ہے جو دن بدن روٹیاں چھڑواتی جائے، خود بڑھتی جائے آہستہ آہستہ؟ پھر کیا ہوتا ہے، اگلے دن میرے پاس ایک دوست آئے، فوری طور پہ اپنی والدہ محترمہ کی ویڈیو لے کر کہ جی شیخ زید میں لٹائی ہوئی ہیں، ان کا کل ٹائم آ گیا آپریشن کا، ان کی ٹانگ پنڈلی سے کاٹنی ہے، حکیم صاحب یہ ان کی ویڈیو دیکھیے، کچھ کرنا ہے۔ میرے ایک بہت پیارے چاہنے والے بھائی ہیں، بھائی محمد زاہد صاحب لاہور سے ہیں، انہوں نے بھیجا۔ میں نے پھر جب ویڈیو دیکھی، ان کی کنڈیشن دیکھی، تو میں نے کہا بھائی اب یہاں میں کچھ نہیں کر سکتا، جب آپ انسولین کو بڑے اچھے طریقے سے لگوا رہے تھے اور ڈاکٹرز آپ کو مشورے دیے جا رہے تھے، آپ ان ڈاکٹر سے پوچھیے گا کہ حضرت جی ہم نے تو آپ کا پورا علاج کیا ہے، پوری انسولین بھی لگائی ہے، پوری آپ کی بڑی ہوئی ٹیبلٹ بھی کھائی ہیں، پھر یہ کیوں ہو گیا؟ جواب نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کے ساتھ میں نے یہ شیئر کر دیا ہے کہ بہت ساری علامات آتی ہیں شوگر کے ساتھ، آپ صبر اور تحمل سے مظاہرہ کرتے رہیں اور اپنی شوگر کو فطری طور پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ انہی الفاظوں کے ساتھ حکیم ضیاء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔